اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ طاہر اسلم گورا کی نظموں کا مجموعہ منظر آنکھوں میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ اپنے گھر کینیڈا کے نام، جس نے میری پرانی اور نئی نظموں کو آباد رکھا۔ نظم: بول مولا کچھ تو بول، بول مولا کچھ تو بول، تیرا بندہ تو بول بول کے تھک گیا، تو کچھ بولتا ہی نہیں۔ تیرا بندہ تجھ سے گہرا سچ مانگتا ہے، تو کچھ بتاتا ہی نہیں، تو کچھ بولتا ہی نہیں۔ تیرا بندہ تیرے سامنے یوں گڑ گڑاتا ہے جیسے بچہ باپ کی لاش کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ بچہ باپ کی لاش کے سامنے روئے چلا جاتا ہے، مرے باپ کو بار بار جھنجھوڑتا ہے۔ مرا باپ کچھ نہیں بتاتا، مولا تو بھی کچھ نہیں بتاتا۔ تیرے اونچے اونچے درخت سرد تیز ہواؤں میں جھولتے ہیں، تیری ہلتی زمین زلزلہ لاتی ہے، تیرے سمندروں کے پانی سب کچھ بہا لے جاتے ہیں، لیکن تو خود کچھ نہیں بتاتا۔ تو خود کیوں نہیں بولتا؟ تو اپنے بندے کو بتا کہ تو زندہ ہے، تو اپنے بندے کو حوصلہ دے کہ تو مرے باپ سے مختلف ہے، تو موت سے مختلف ہے۔ نظم: منظر آنکھوں میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ دریا کنارے کھڑی لڑکی دریا کنارے کھڑی رہتی ہے، دریا بھی وہی رہتا ہے، منظر بھی وہی رہتا ہے، لڑکی وہاں نہیں رہتی۔ لڑکی کو چاہنے والے اسے بار بار اسی منظر میں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ منظر نہیں بدلتا، لڑکی بھی نہیں بدلتی، خود ہم ایک جگہ رکے رہتے ہیں، منظر آنکھوں میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ نظم: دوست دشمن کی تمیز۔ جو میرا ساتھی ہے وہ بارش کے دنوں میں میرا دشمن بن جاتا ہے، جو میرا دشمن ہے وہ سامنے کی پہاڑی پر میری طاق میں مورچہ لگائے سنہری دھوپ کا انتظار کرتا ہے تاکہ مجھے دھوکہ دینے کی خاطر محبت اور امن کا پیغام بھیج سکے۔ جو میرا ساتھی ہے وہ سنہری دھوپ میں بھی میرا دشمن بن جاتا ہے، جو میرا دشمن ہے وہ بارش کے موسم میں میرے لیے تلتے ہوئے پکوڑوں کے تیل کی مہک بھیجتا ہے اور بھیگے گیتوں کے گولے فائر کرتا ہے۔ میرا ساتھی ان گولوں سے مجھے بچانے کی خاطر انہیں راہ میں اچک لیتا ہے اور میرے اوپر برسانے کی غرض سے اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے۔ مجھے آج تک ٹھیک سے پتہ نہیں چل سکا میرا ساتھی میرا دشمن کب بنتا ہے، اور میرا دشمن کبھی کبھی میرا ہمدرد کیوں بن جاتا ہے۔ میں برف کے موسم کا انتظار کرتا رہتا ہوں تاکہ اپنے دشمن کو برف کے گولے پھینک سکوں اور اپنے ساتھی کو برف میں دفنا سکوں۔ نظم: کیا سالگرہ کو منانے کی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ سر سے سر جس طرح ملتے ہیں، کیا اس طرح باتیں بھی باتوں سے مل سکتی ہیں؟ اچھے شعر کے مصرعے جس طرح ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، کیا دو ساتھی بھی اچھا شعر بن سکتے ہیں؟ خاموشی خاموشی کی طرح جس طرح ہمراز ہوتی ہے، کیا کوئی آواز بھی خاموشی میں مدغم ہو سکتی ہے؟ گیت کی ندیا کے ساتھ جو دوستی ہوتی ہے، کیا ندیا بھی گیت کے اندر سمو سکتی ہے؟ زندگی کی شفاف حقیقتوں کے بیچ شفاف جذبوں کی بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ مغالطوں میں دھسے لوگوں کو دلدل سے نکالنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے؟ دلدل سے نکلنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے؟ تم اور تمہارا آئیڈیل، میں اور میرا آئیڈیل، یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ گزرتی عمر کی ہر سالگرہ کے موقع پر سوچتا ہوں، کیا سالگرہ کو منانے کی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ نظم: ننگے جسموں کا خوف۔ اریانی سے ہم گھبرا جاتے ہیں،
और कपड़े फाड़ देते हैं। शर्म हमें बीच चौराहे नंगा कर देती है। उरियानी हमें परेशान कर देती है। हम नंगे होने के काबिल ही नहीं रहते। नंगे होने के ख्याल से हमें हंसी आ जाती है। हम शेमी शेमी हो जाते हैं। उरियानी हमें खा जाती है। हमें हमारे जिस्म दीमक की तरह चाटने लगते हैं। हम नंगे जिस्मों से डर के जन्नत की तरफ भागते हैं। नज्म रात का पिछला पहर। रात के पिछले पहर गिरती बारिश में झरने की आवाज सुनो। सारी बत्तियां बुझाकर दो चार भागते जुगनुओं की पुकार सुनो। सभी टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फोन बंद करके दरख्तों की शाखों में बारिश से बचते परिंदों के बारे में सोचो। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों की सरसराहट को बारिश का हिस्सा बनते देखो। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों की सरसराहट को बारिश का हिस्सा बनते महसूस करो। अपने आशिक या महबूबा के कुर्ब को घड़ी दो घड़ी के लिए महसूस करो। अगर ये सब कुछ कर सको, अपने आप को खुशकिस्मत समझो, वरना झरने की लोरी में सो जाओ। नज्म जंगी तराने मत गाओ। एक दूसरे के खिलाफ जंगी तराने गाने बंद कर देने चाहिए। एक दिन ये सारे दुश्मन भी मर जाएंगे, और तुम्हारे और हमारे हीरो भी, और हमें और तुम्हें उकसाने वाले भी। जंगी तराने रोकने की पहल करने की जुर्रत तो कीजिए। सरहदों पर सिपाही खड़े खड़े बूढ़े हो गए हैं। मेरे जनरल साहब को अपने जंगी कारोबार को रोकना है, और आपके प्रधानमंत्री को अमन का आशीर्वाद देना है। नज्म 10 सत्रों में बयान। हम 10 सत्रों में अपना बयान कलमबंद करवा सकते हैं। वो अगर हमें पकड़ना चाहेंगे तो पकड़ लेंगे। हम अगर भागना भी चाहें तो भाग नहीं सकेंगे। वैसे हम भागना चाहते भी नहीं। उन्होंने गद्दारी और कुफ्र के फतवों का ऐसा बाजार गर्म कर रखा है, शहर का शहर एक दूसरे को काफिर और गद्दार कहता नहीं थकता। हर कोई अपने मुखालिफ को गोली मारने से पहले कुफ्र और गद्दारी की कालक मलना चाहता है। हम अपने बयान में इन हिकारत आमेज लफ्ज़ों को डिक्शनरी से निकालने का मुतालबा करते हैं। हमारा ये बयान 10 सत्रों से पहले ख़त्म हो रहा है, क्योंकि लोगों का एक हुजूम हमें मारने को आ रहा है। नज्म उदासी की घड़ी के बाद। किसी को किसी का इंतजार रहता है एक उदासी की घड़ी में, और वो घड़ी गुजर जाती है। उदासी पीछे रह जाती है। आखिर में इंतजार करने वाला इंतजार करना छोड़ देता है और फिर अपने आप से मिलता है। अपने हजारों लाखों मद्दाहीन के जमघटे से भाग जाना चाहता है। तेज बारिश में अकेले नहाना चाहता है। पहाड़ के ऊपर कॉटेज में तन्हा बैठकर ऊंचे सुरों में पुराने गीत सुनना चाहता है, और फिर ढेरों रोना चाहता है। आंसुओं की बारिश के बाद मुस्कुराना चाहता है। सिर्फ अपने आप से मिलना चाहता है। नज्म चांद की टिकिया। चांद की टिकिया बारिश के बाद वाली गर्मियों की निस्बतन ठंडी शाम के दौरान झील के पानियों पर रोशनी बरसाती देखने वालों की आंखों में टिक सी जाती है। इस टिकिया को देखने वाले इसे अपनी आंखों के दीदों की जगह नगीने के तौर पर बसाते हैं। चांद की टिकिया चलती गाड़ी, बहते पानी और टहलते लोगों के साथ साथ सफर करती रहती है। चांद की टिकिया देखने वाले भूल जाते हैं चांद की टिकिया चांदनी रोशनी का सिर्फ गुब्बारा ही नहीं, बल्कि इस कायनात का एक सैयारा भी है।
وہ یہ اکثر بھول جاتے ہیں وہ ایک سیارے کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ خود ایک دوسرے سیارے کی مخلوق ہیں، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کینیڈا سے بھارت اور چین سے جاپان تک نظر آنے والی چاند کی یہ ٹکیا کوئی معمولی شے نہیں۔ نظم۔ پانی تو ایک شیشہ ہے۔ میں بھول گیا تھا، پانی تو ایک شیشہ ہے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوں تو پانی بھی بادل رنگ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد جھٹ سے سورج نکل آئے تو پانی کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ میں بھول گیا تھا یہ دنیا تو رنگوں کا گلدستہ ہے۔ یہ بات مجھے نیاگرا فالز کے کنارے چلتے یاد آئی، جب پتجھڑ کے دنوں میں سارے رنگ کھل آتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا پانی تو ایک بانسری بھی ہے، ایسی بانسری جو اس گھنٹی سے مختلف جو سڑک کنارے کسی گرجا گھر سے سنائی دی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پانی تو ایک خاموشی بھی ہے جو دریا کنارے بیٹھنے پر محسوس ہوئی۔ میں بھول گیا تھا پانی تو ایک بہاؤ بھی ہے جو دل کو اور ہوا کو ساتھ ساتھ لیے جاتا ہے۔ نظم۔ سب دن کو اپنے اندر سمونے نکلے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ بہت سے روشن دنوں کی طرح یہ دن بھی گزر جائے گا۔ سب جانتے ہیں کہ اگلی نسلوں کے لوگوں کی طرح یہ لوگ خود بھی گزر جائیں گے۔ اس بے چینی کے ساتھ دن کے مزید چند گھنٹے تک رہنے کا جشن اپنی آب و تاب پر ہے۔ اسٹار بکس کے باہر کافی پینے والے جمع ہیں، اپنی خوبصورت ٹانگیں دکھانے والی عورتیں خوش ہیں، ایک بوڑھا جوڑا جو گھر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا مگر دن کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے باہر نکلنے پر مجبور ہے کہ کہیں یہ دن ان کی زندگی میں آنے سے رہ نہ جائے۔ کوئی بھی اس خوبصورت دن کو چپکے سے گزر جانے دینا نہیں چاہتا، ہر کوئی اپنی زندگی میں ایک دن کا اضافہ کرنا چاہتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اضافہ دراصل زندگی میں ایک دن کی کمی ہے۔ کوئی بھی زندگی میں دنوں کی کمی سے نہیں ڈرتا، سب کو بھاگم بھاگ لگی ہے، سب کو سردیاں آنے سے پہلے کا یہ دن غنیمت لگ رہا ہے، سب ایک دوسرے کو اچھے دن کے ہونے کی خبر سنا رہے ہیں۔ یہ خبر سناتے سناتے دن چٹکیوں میں گزر جا رہا ہے، پھر بھی سب دن کو اپنے اندر سمونے نکلے ہیں۔ جیسے کسی تصویر کو دیوار پر آویزاں کیا جاتا ہے، تصویر آویزاں کرنے والا وہاں نہیں رہ پاتا، تصویر وہیں رہتی ہے۔ دن کو اپنے اندر سمونے والے وہاں نہیں رہ پاتے، دن وہیں رہتا ہے۔ نظم۔ تازہ نظم کیسے کھائیں؟ نظم لکھے ایک زمانہ بیت گیا، غالباً 1-2 سال پہلے کوئی نظم لکھی تھی۔ زندگی کے ہنگاموں اور کاموں کے دوران نظم لکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ انہی ہنگاموں اور کاموں کے دوران جب کبھی نظم بننا شروع ہوتی ہے تو ذہن کے گنبد اور تخلیق کی بھٹی میں مکئی کے دانوں کی طرح بھننے لگتی ہے۔ تب اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ان تازہ بھنے دانوں کو تازہ تازہ کھا لیا جائے۔ خیال آتا ہے کہ کچھ دیر بعد فرصت کی گھڑی میں ان دانوں کو اکٹھا کر لیں گے، تب تک مکئی کے دانے ہوں یا نظم کی سطریں جل چکی ہوتی ہیں۔ پیچھے ایک پچھتاوا رہ جاتا ہے، ایسا پچھتاوا جو زندگی کے کئی پچھتاووں کی آڑ میں کبھی گمسا ہو جاتا ہے اور کبھی سامنے آن کھڑا ہوتا ہے۔ اب بھلا پچھتاووں کو آدمی کب تک نظم کرتا چلا جائے؟ نظم۔ سمندر کی بات بھی سنو۔ تم تو بگلوں کی طرح ٹھنڈے پانی پر تیر نہیں سکتے، اور پھر پر پھڑپھڑا کے تیز یخ ہواؤں میں اڑ نہیں سکتے۔ تم تو 3 سویٹر پہنے سمندر کنارے خشک پتھر پر بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے ہو۔ جب رت بدلی ہے تو سمندر کنارے آئے ہو، دیکھنا دستانوں سے باہر تمہارے ہاتھ اس نظم کو لکھتے جم نہ جائیں۔ اپنے بیگ سے ٹوپی نکال کر سر پر لے لو،
तुम्हारी दाढ़ी के बाल सर्दी से हंस रहे हैं। अभी तो बर्फ गिरने के दिन नहीं आए। तुम क्या बगलों को हैरत से देख रहे हो? ये तो तुम्हारी आंखों के सामने उड़ते हैं और दूर पानी में उतरकर फिर खुद को पानी के हवाले कर देते हैं। ये बगले इस तरह तैरते हैं जिस तरह उड़ते हैं। बगले अपने आप को पानियों के हवाले कर देते हैं, हवाओं के सुपुर्द कर देते हैं। तुम उनको ठंडे पानियों पर तैरते और यख हवा में उड़ते देखकर सर्दी से दोहरे हुए जाते हो। वो देखो, दूर बादबानी कश्ती पानी को परकार की तरह काटती चली जा रही है। उस परकार से परे दूर आसमान पानी के साथ गुंबद बनाता नजर आता है। ये सब कुछ तुम्हारी आंख के लिए धोखा है। हकीकत कुछ और है। छोड़ो हकीकत को। तुम तो समुंदर को देखने यानी मुझे देखने आए हो। तुम तो कुदरत का यानी नेचर का तमाशा करने आए हो। तुम कुदरत का तमाशा देखने की ताब नहीं रखते। जाओ, जाकर कॉफी पियो और इस सुनसान यख किनारे से उठकर दूर टहलते लोगों में जा मिलो। नज्म। समुंदर के किनारे लेटा आदमी सोचता है और सो जाता है। समुंदर के किनारे लेटा आदमी आसमान को ऊपर समुंदर जैसा देखता है। समुंदर के किनारे लेटा आदमी करवट बदलने पर आसमान और समुंदर को मिलते देखता है। समुंदर के किनारे लेटा आदमी अनजाने देश के जजीरे में अनजाने आसमान और अनजाने समुंदर को हैरत से देखता है और सोचता है किसी दूसरे देश का आसमान और समुंदर मेहरबान भी हो सकते हैं। समुंदर के किनारे लेटा आदमी देखता है बगले पर फैलाए नाचते हुए जमीन पर फुदकते हैं, फिजा में उड़ते हैं और पानियों पर तैरते हैं। सूरज की किरणें समुंदर की लहरों को चमका कर रख देती हैं। समुंदर के किनारे लेटे आदमी को अपने घर में नींद नहीं आती। समुंदर के किनारे लेटा आदमी समुंदर और आसमान को एक ही पाता है और सो जाता है। नज्म। धूप का जहान। धूप के सफर में जब ठंडी जगहें राह में आती हैं, फूटते फव्वारों के दरमियां दुकानें राह में मिलती हैं, या फिर राह में घने दरख्तों की छांव में लकड़ी के घर पड़ते हैं। नींद सी आ जाती है, आंखें बेबस हो जाती हैं, दिमाग सनसनाने लगता है, गाड़ी डोलने लगती है, दुनिया घूमने लगती है। धूप के सफर में ठंडी जगहें आ ही जाती हैं। ठंडी जगहों वाले कहाँ रुकने देते हैं। धूप के सफर में चलते रहने का संदेशा देते हैं। धूप के सफर पर निकले मुसाफिर धूप के जहां में धूप की सड़क पर चलते रहते हैं। उनको इसी सड़क पर कहीं नींद आ जाती है, उनकी गाड़ी इसी सड़क पर कहीं टकरा जाती है, उनको इसी सड़क पर कहीं मौत आ जाती है। नज्म। रीमिक्स जिंदगी। पुराने गीतों में छुपे हुए दर्द को निकाल दो। महात्मा बुद्ध के ज्ञान में रचे सुरीले सुरों को रचा दो। जिंदगी को रीमिक्स बना दो। रोशनियों, रंगीनियों और रानाइयों को साइंस बना दो, या फिर साइंस को बरकी रानाइयों का रूप दे दो। अगर कुछ भी न कर सको तो भी न पछताओ। सब कुछ खुद ब खुद होता जा रहा है, सब कुछ खुद ब खुद होता चला जाएगा। तुम और मैं तो बस एक हीला वसीला हैं, या फिर तुम और मैं तो अपने होने का जवाज ढूंढते हैं। वक्त की रफ्तार हम में से किसी के काबू में नहीं। वक्त की रफ्तार तो सूरज चांद के भी ताबे नहीं। कहकशाओं की इस कायनात में, तितलियों, रंगों और खुशबुओं के इस जहान में छुपे दर्द को निकाल फेंको। सभी मजहबी नजरियात को रीमिक्स कर दो। पुराने गीतों से पोशीदा दर्द को निकाल दो।
पुराने गीतों में छुपे हुए दर्द को निकाल दो। महात्मा बुद्ध के ज्ञान में रचे सुरीले सुरों को रचा दो। जिंदगी को रिमिक्स बना दो। नज्म। वक्त की कोई कल सीधी नहीं। कौन सी घड़ी का वक्त दुरुस्त है याद नहीं पड़ता। एक घड़ी 2-3 मिनट आगे है, एक घड़ी 1 मिनट और चंद सेकंड पीछे है, एक घड़ी इन दोनों के कहीं दरमियान में है। असल में किसी घड़ी का वक्त दुरुस्त नहीं। घड़ियों की सुइयों को जमाते वक्त दुरुस्त वक्त को अहमियत नहीं दी जाती। 1-2 मिनट के अंदाजन फर्क को काफी समझा जाता है। कभी ऐन दुरुस्त वक्त दरकार होता है, बिग बैंग की घड़ी जैसा, टाइम बम पर फिट वक्त जैसा, रश में से भाग कर दफ्तर पहुंचने जैसा, सुइयों पर सुइयां चढ़े मंजर जैसा। लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता। सुइयों पर से सुइयां उतर जाती हैं, टाइम बम फट जाता है, बिग बैंग की टन टन बज जाती है। फिर वक्त 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाता है। कभी वक्त 1-2 सदियां सरक जाता है। फिर कोई स्टैंडर्ड वक्त नहीं रहता। घड़ी साज आंखों पर अचसा चढ़ाए घड़ी के बारीक पुर्जे ढूंढने लगता है। घड़ी साज वक्त को आगे पीछे से वापस लाकर दुरुस्त सुइयों पर रखना चाहता है। सुइयां सरकती रहती हैं, सुइयां थिरकती रहती हैं। सुइयों को सरकने से वक्त भी रोक नहीं सकता। सुइयों को थिरकने से घड़ी साज भी रोक नहीं सकता। नज्म। जमाना और मैं एक साथ चल नहीं सकते। कभी 4 कदम आगे होता हूं और कभी 4 कदम पीछे। मैं जमाने के साथ नहीं चल सकता और न जमाना मेरे साथ चलता है। कश्ती के चप्पुओं की तरह मेरे कदम कभी आगे होते हैं और कश्ती पीछे, कभी कदम पीछे होते हैं और कश्ती आगे। इस तरह कश्ती तो चल सकती है, मैं नहीं चल सकता। लेकिन मैं इसी तरह चल रहा हूं, न चल सकने के बावजूद चल रहा हूं और चलता जा रहा हूं और चलता रहूंगा। जमाना और मैं एक साथ नहीं चल सकता। नज्म। आदमी रोबोट ही तो है। कौन कहता है कि आदमी रोबोट नहीं? आदमी रोबोट ही तो है। आंखों के ऊपर जुड़े हुए शीशे मंजर बदल देते हैं। जब मैदा अच्छा काम करता है, पुराने मंजर नए हो जाते हैं। आदमी अच्छी तरह सो ले तो बोसीदा रास्ते अच्छे लगने लगते हैं। ये प्रोग्रामिंग ही ऐसी है। आंखें जिन पर आदमी को बड़ा नाज होता है, आदमी आंखों देखी हर शय को सच्चा समझता है। जब आंखों के शीशों पीछे तह दर तह लेंस आगे पीछे होते हैं, आदमी की आंख कैमरे की आंख बन जाती है। जिस तरह कैमरा लेंस बदल बदल कर और अपर्चर छोटे बड़े करके देखता है, उसी तरह आदमी की आंख रंग बिरंगे लेंसों के साथ रंग बिरंगी होती रहती है। आदमी रोबोट ही तो है। आदमी कहता है आदमी रोबोट नहीं। आदमी खुशी में लुढ़क जाता और गुस्से में लरस जाता है। आदमी खाता पीता सोता जागता हंसता रोता है। आदमी रोबोट ही तो हुआ। नज्म। साल भर की उम्मीदें। हर रोज एक नई उम्मीद लेकर सोता हूं। साल में 310 के करीब उम्मीदें जमा होती हैं। 50-55 के करीब छुट्टियां होती हैं। किसी साल कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती, जैसे खुश्क साली का साल हो। उस खुश्क साली में इकट्ठी की हुई उम्मीदें कहीं खर्च हो जाती हैं। कभी इकट्ठी की हुई उम्मीदें गिर जाती हैं और कभी राह चलते तेज हवा के साथ उड़ जाती हैं। बहुत सारी उम्मीदें पानी के बुलबुले की तरह हाथ लगाते खत्म हो जाती हैं। उम्मीदों के गिरने, उड़ने और खत्म होने का दुख नहीं होता। उम्मीदों का एक कारखाना कहीं लगा है,
जहां से उम्मीदें मुसलसल आ रही हैं, जैसे अनदेखी सदा किसी को कहीं से आती है, जैसे अनजानी हवा पीछे से चली आती है। सदा किधर से आती है, हवा किधर जाती है, कोई सोचता नहीं, कोई देखता नहीं। मुझे किसी से पूछना है, उम्मीदों के इस जहान को कब तक आबाद रखना है। मुझे किसी से पूछना है, उम्मीदों के इस जहान में कब तक आबाद रहना है। नज्म। आसमान सजा हो तो अच्छा लगता है, चाहे होली के रंगों से, चाहे परिंदों की डारों से, चाहे बसंत की रंग बिरंगी पतंगों से। कभी कभी आसमान शाम ढले खाने के धुएं से भी सज जाता है, और कभी कभी नीचे से उठने वाली मौसीकी आसमान पर छा जाती है। और जब कभी बादल धमाल डालते हैं, बादलों की काली चिट्टी चादरें उथल पुथल हो जाती हैं। या फिर सिर्फ काले गूढ़े बादलों में न पकड़ाई देने वाली बिजली की लपक और चमक, या फिर कभी गूढ़े बादलों की चादर की ओट से सूरज की शर्मीली धूप, या फिर हवाओं की अपनी लहरें जिसमें हवाई जहाज कश्तियों की तरह डोलते हैं, और काली सियाह रात में बेतरतीब सितारों का रक्स, और चांदनी रात में चांद की अपनी जोबन। कभी सियाह रात में गूढ़े बादलों की बारिश और उसकी धमक, या फिर सियाह बर्फानी रात में बर्फ की चमकीली चादर। और जब आसमान कभी कभी कई दिन बर्फ की तहें बिछाता है और जमीन और अपने दरमियान हर चीज को बर्फ बनाता है, उसी तरह आसमान पहाड़ों के ऊपर तरह तरह के रंग दिखाता है। कभी पहाड़ों को अपने अंदर ले जाता है और कभी दूर से मुंह चिढ़ाता है। आसमान सजा हो तो अच्छा लगता है, चाहे दूर ऊंचे मीनारों से या ऊंची इमारतों से, चाहे जहाज की सांप जैसी लकीर से, और चाहे कौसे कज़ा की सीढ़ी से। आसमान सजा हो तो अच्छा लगता है, आसमान खाली हो तो खाली जहान जैसा लगता है। नज्म। शहर में खुशी का एक दिन। शहर में आज कोई खुशी का मौका है। शहर तो बताता नहीं, लोग भी बताते नहीं। तन्हा तन्हा जीने वालों का ये पुरहुजूम शहर किसी बात पे झूम रहा है। लोग रेस्तरानों में यूं खचाखच भरे हुए हैं, जैसे पेट भरकर खाना खाने का त्यौहार हो। फिर भी किसी से त्यौहार की नौइयत का पूछना चाहिए। भागती औरतों के हाथों में बंधे कुत्तों के पट्टे शायद कुत्तों की आजादी का त्यौहार हो। शहर क्यों इतना खुश है? हसद नहीं करना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए। खुला मौसम आने की खुली खुशी हो सकती है। टैक्सियां शराबियों को ढोने की कीमत पर मस्त हैं। अरबी, हिंदुस्तानी, चीनी और जापानी भी आज खुश हैं। आज कोई खास बात है। टोरंटो खुश है। आज की खुशी का राज किसी को मालूम नहीं। नज्म। देखें कौन सी जमीन उन्हें झेलती है। जिनके पास अपनी जमीन न रहे, जिनके पास अपना यकीन न रहे, खुदा की ये जमीन मुख्तलिफ लोगों के लिए बटी हुई है। एक जमीन से निकलने वाले दूसरी जमीन पर पनाह लेते हैं और दूसरी जमीन पनाह देती है। एक जैसी ये जमीन मुख्तलिफ लोगों के लिए यूं बटी हुई न हो तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लोगों को हड़प कर जाएं। देखें कौन सी जमीन उन्हें झेलती है। नज्म। मुझे हिजरत हमेशा रास आई, चाहे इसमें रोना पड़ा हो और चाहे सब कुछ खोना पड़ा हो। रोना और खोना हिजरत के समर हैं। हिजरत करके निकल सको तो निकल जाओ। हिजरत से पहले आम दिनों में जितनी अशिया इकट्ठी की थी, हिजरत करते वक्त उनसे छुटकारा मिल गया। जूतों के 20 जोड़ों में से 2 जरूरी समझे, बाकी कभी याद ना आए। बर्तन, चूल्हे, आटा दाना गैर जरूरी लगे। 2 सोफे, 2 चारपाइयां जरूर याद रहीं।
हिजरत में यही कुछ खोना पड़ता है, बाकी खाम खां रोना पड़ता है। मुझे हिजरत हमेशा रास आई। नज्म, ये जिंदगी बादज मौत की जिंदगी है। मुझे शक है ये जिंदगी बादज मौत की जिंदगी है। चारों तरफ जन्नत और दोज़ख के बाजार सजे हैं। बदलते मंजर, बदलते मौसम और बदलते रंग यूं तेजी से आते जाते हैं जैसे हश्र का सामा हो। रक्स करती जिंदगी, बर्फ जैसी मौत यूं बेमानी है जैसे जमाना बादज मौत का जमाना हो। ये जिंदगी बादज मौत की जिंदगी है। नज्म, जाल जैसा आसमान। आसमान को पहाड़ पर बैठकर देखना अलग ही तमाशा है। आसमान आसमान लगता ही नहीं। हौसला होता है इस आसमान को हम पार कर जाएंगे। जाल जैसा ये आसमान फकत एक पहाड़ पर चढ़ जाने की वजह से बाजू भर करीब लगता है। इतना करीब कि इस पर तैरना मुमकिन नजर आता है। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से ऊंचा जाना मुमकिन नहीं होता, वरना हम आसानी के साथ आसमान से बाहर निकल के कुछ और देख सकते। नज्म, हम कायनात को कितना जानते हैं। हम कितना जानते हैं। हम कायनात को कितना जानते हैं। कुछ भी नहीं। हम जमीन को कितना जानते हैं। कुछ भी नहीं। हम में से अक्सर ने खुले समुंदरों की ठहराव भरी गहराई नहीं देखी। हम किनारे को ही समुंदर समझते हैं। कितनों ने यख बर्फानी हवाओं के दोष पे फैले ग्लेशियर देखे हैं। जो मौसीकी हम सुनते हैं सिर्फ वही मौसीकी नहीं होती। जो किताबें हम पढ़ते हैं सिर्फ वही किताबें नहीं होती। जो जिंदगी हम गुजारते हैं सिर्फ वही जिंदगी नहीं होती। जो हादसे हम देखते हैं सिर्फ वही हादसे नहीं होते। जो जश्न हम मनाते हैं सिर्फ वही जश्न नहीं होते। छुपे हुए पहाड़ों के बेनाम चश्मों की भी तो रवानी होती है। बहुत से अनदेखे परिंदों की उड़ान की भी कहानी होती है। हम कायनात को कितना जानते हैं, परिंदों की उड़ान जितना भी नहीं। नज्म, आओ सड़कों पर निकलकर रक्स करें। साफ चमकते शीशे के ग्लास में चेरी के शरबत का रंग आंखों के रस्ते दिलो दिमाग को दुनिया की रंगारंगी का यकीन दिलाता है। ड्रम की लय के साथ जैज की उठती मौसीकी कानों के पर्दे से फिल्टर होती रूहो बदन के तारों को झंझनाती है। मुलायम आर्ट कागज पर छपी लड़की की रंगीन तस्वीर लड़की के बदन जैसी मुलायमत का एहसास देती है। किताबों के अंदर छुपे लफ्ज पढ़ने वाले को मुजस्सम तस्वीर का तसव्वुर देते हैं। पर्दा स्क्रीन पर नाचती तस्वीरों ने जिंदगी को रक्सो धमाल बना दिया है। कंप्यूटर के ग्राफिक वर्क ने इंसान को सितारों पर बिठा दिया है। इंटरनेट की डाउनलोड होती तस्वीर ने नुज़ूलो वही का यकीन दिला दिया है। ये सब क्या है? आओ सड़कों पर निकलकर रक्स करें। बारों पर बैठकर धुएं के मरगोलों में धमा चौकड़ी मचाएं। समुंदरों के साहिलों पर कपड़े उतारें। सेक्स को कजरवी से निकालें। आओ जश्न मनाएं, रोज जश्न मनाएं। जश्न न मना सकने का रुझान रखने वालों को बताएं, मुख्तलिफ रंगों के शरबतों और शराबों को देखते रहा करें। ड्रम की लय और जैज के साज को सुनें। हारमोनियम और तबले की संगत पर कान धरें। लड़के मुलायम लड़कियों और लड़कियां दिल को भाने वाले लड़कों की तस्वीरों को देखें। किताबों के कागजों की खुशबू और लफ्जों की हकीकत में खो जाएं। कंप्यूटर के ग्राफिक वर्क और इंटरनेट में दुनिया तलाश करें। आओ कुछ तो करें, आओ कुछ तो करें, आओ सड़कों पर निकलकर रक्स करें। नज्म, भरा मेला किसी को उठने नहीं देता। भरे मेले से उठ के निकल जाना ही अच्छा होता है। भरा मेला किसी को उठने नहीं देता।
चेहरों की कशिश भरे मेले को सदा भरा रखती है। दिल लुभाने वाली बातें खत्म होने को नहीं आती। लोगों की हंसी गुमराह किए रखती है। भरा मेला एक भरी दुकान की तरह होता है। भरी दुकान ग्राहकों को अपनी तरफ खींचती है। भरी दुकान से खाली हाथ निकलना बड़े दिल वालों का काम है। भरे मेले में कोई ना कोई शय हर वक्त दस्तयाब होती है। भरी दुकान में जरूरत न होने के बावजूद जरूरत पैदा होती है। भरे मेले को छोड़ के जाने वाले कई चेहरों को सालों नहीं भुला पाते। वाकयात और बातों की चहक महक एक अरसे तक रहती है। मेले के टूटने के बाद मेला मेला नहीं रहता। मैदान में खेमों का एक कारवां पीछे रह जाता है। उस कारवां में धूल उड़ती है। टावां टावां लोग खेमों की लकड़ियां खींचते हैं और भरे मेले के दौरान न निकलने पर पछताते हैं। नज्म, जाने मन जाने अजीज। जाने मन जाने अजीज, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जिस्म भूरी मिट्टी की तरह झड़कर भुर जाएगा? क्या तुम्हें अपना शरीर किसी तेज तेजाब में घुलता महसूस होता है? और क्या हड्डियों का ढांचा लकड़ी का ढांचा नहीं लगता? क्या तुम्हें अपना जिस्म भक करके हवा में तहलील होता नजर नहीं आता? जाने मन जाने अजीज, क्या तुम खुद को बर्फ के गोलों की तरह सफेद आसमान से उतरते दिखाई नहीं देते? या फिर आग के लपकते शोलों में एकदम सियाह होकर गिरते सुनाई नहीं देते? जाने मन जाने अजीज, क्या तुम हवा में उड़कर नजरों से ओझल नहीं हो जाते, जैसे कोई नगमा हवा में खुशबू बिखेर कर तहलील हो जाता है? जाने मन जाने अजीज, क्या तुमने कभी ढोल की जोरदार थाप पर धमाल डालते हुए चकरा कर देखा है, या फिर खुद को तेज मिर्चों के सालन में भिगोकर खाया है? जाने मन जाने अजीज, क्या तुमने कभी तेज सनसनाती हवा में चीख चिल्लाकर किसी को पुकारा है और बाद में रेत के झक्कड़ में खुद को दफन होते देखा है? जाने मन जाने अजीज, बताओ तो सही, तुमने क्या क्या देखा है? नज्म, इंसान की शान। इंसान डरा हुआ ही रहता है। कभी हर लहजा मोटर के मुतवक्का हादसे के डर से, कभी जहाज की हर उड़ान के पीछे छुपे इम्कान से, कभी आसमान तक छाले मारते समुंदर के तसव्वुर से, कभी हवाओं के थपेड़ों में उड़ती छतों के ख्याल से, कभी फलकबोस इमारतों और फलकबोस पहाड़ों के रेजा रेजा होने के ख्याल से। इंसान की शान देखो, इंसान डरा हुआ ही रहता है। नज्म, खला एक भूत। इस तैरती जमीन पर, इस घूमते सैयारे में, छोटे और बड़े घर बनाने वाले इंसान अपने छोटे और बड़े चक्करों के साथ इस जोम में हैं कि उन्होंने अपनी धरती पर कदम जमाए हुए हैं। वो कभी खला में जाते हैं तो खुद को खला पर छा जाने वाला समझते हैं, मगर भूल जाते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बलाओं के घेरे में हैं। नज्म, सच्चाई नहीं मिलती। कभी हम लाख सर टकराएं, सच्चाई नहीं मिलती। छोटी छोटी बातों की सच्चाई सामने पड़ी होती है, लेकिन हाथ नहीं आती। कुछ लोग इसके न मिलने को जरूरी नहीं समझते, लेकिन कोई इसकी खातिर पागल हो सकता है, सर टकरा सकता है। ये बात सच्चाई को मालूम होती है। वो हंसती रहती है, हाथ नहीं आती, सच्चाई नहीं मिलती। नज्म, सच्चाई नहीं मिलती 2। जिंदगी भर एक बार नजर आने वाले परिंदे की तरह सच्चाई एक बार नजर आई, फिर गायब हो गई। अब मैं साबित करने के लाख जतन करूं, लोग मेरी सच्चाई को जिद समझेंगे।
मैं जानता हूं जिद सच्चाई का झूठ है। मुझे सच्चाई पर बज़िद नहीं होना चाहिए। मुझे सच्चाई को आज़ाद कर देना चाहिए। सच्चाई आज़ाद होकर परिंदे की सूरत हवा में महफूज हो जाती है। सच्चाई ने मेरे दिमाग के अंदर घुल कर क्या लेना है? सच्चाई नहीं मिलती। नज़्म बहुत कम लोग जानते हैं। तरबूज के गूदे और गोश्त के लोथड़े में कम फर्क होता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ वही लोग जानते हैं जो चीज़ों को करीब से देखने का हौसला रखते हैं, वरना दूर की चीज़ों से बेखबर रहने वाले तरबूज के गूदे को गोश्त का लोथड़ा समझ बैठते हैं और बाद में अपनी अक्ल पर मातम भी नहीं करते। नज़्म साल भर। छिपकलियां कैलेंडरों के पीछे बसेरा कर लेती हैं। साल भर कैलेंडर दीवार से उतरता है, उसकी जगह नया कैलेंडर लग जाता है। छिपकलियां फिर कैलेंडरों के पीछे चली जाती हैं। एक छिपकली एक साल के नीचे चली जाती है। एक छिपकली एक कैलेंडर के पीछे चली जाती है। साल भर छिपकली से घिन नहीं आती। नज़्म मैं एक बार फिर हार गया। हार और जीत के मानी मुझे मालूम है। हार और जीत दोनों मेरे लिए बेमानी हैं। इसके बावजूद मैं एक बार फिर हार गया। जीता आखिर कौन? ना मैं ना कोई और। जीत किस चीज़ की, हार किस चीज़ की? अलबत्ता मैं एक बार फिर हार गया। इस शतरंज नुमा झमेले में, दुनिया के बेवकूफ़ाना मेले में। इस हार को जीत की शक्ल देने में देर कितनी लगती है। पलक झपकने में न सही, ज़माना बदलने में थोड़ा ज़माना चाहिए। मैं एक बार फिर जीत गया इस शतरंज नुमा झमेले में, दुनिया के बेवकूफ़ाना मेले में। नज़्म बिस्तर की तहें। 2 गज के बिस्तर में चीज़ें किस तरह गुम होती हैं, ये एक मुइम्मा है। फिर मिल जाती हैं, ये दूसरा मुइम्मा है। पहले मुइम्मे में आदमी लाख कोशिश करे, बिस्तर की तहें चीज़ को छुपा देती हैं। दूसरे मुइम्मे में आदमी लाख भूलने की कोशिश करे, बिस्तर की तहें चीज़ को उगल देती हैं। नज़्म नींद बिस्तर को देखते रह जाती है। नींद का वैसे एहसास नहीं होता। बिस्तर पर नजर पड़ने से दिन की थकन सदियों जैसी लगती है। बिस्तर से नजर हट जाए, आंखों से नींद का बादल नहीं छटता। सदियों के काम लम्हों में याद आते हैं। नींद बिस्तर को देखते रह जाती है। नज़्म ये उदासी की बात नहीं, ये उदासी की बात नहीं, सोचने की बात है। कई कई रोज तक अपने आप से मुलाकात नहीं होती। अचानक याद आता है कि मैं भी कोई हूं। उस वक्त बेतहाशा रोने को जी चाहता है। अचानक रोना भूल जाता हूं। जब रोने को वक्त मिलता है, याद नहीं आता मैं कौन हूं। ये उदासी की बात नहीं, सोचने की बात है। नज़्म हाथ दिखाने वाले। हाथ दिखाने वाले अपनी सारी जिंदगी को हाथ की लकीरों में उलझा देखना चाहते हो। असल जिंदगी हाथ से बाहर है। लकीरों का ये आढ़ा तिरछा जाल अगरचे जिंदगी की तरह है, तुम इस जाल में ना आना। लकीरें सच भी बताएं तो भी अपने काम से काम रखना। नज़्म उसका हुस्न तो इत्तेफाकी था। उसका हुस्न तो इत्तेफाकी था, तुम ऐसे ही डर गए। अब उसके न मिलने पर अफसुर्दा हो। वो तो तुम्हें इत्तेफाकन नजर आया था। इस तरह के कितने हसीन तुम्हारी आंखों से ओझल हैं। तुम ऐसे ही हाथ मलते रहते हो। नज़्म
जमहूरियत का मेला। तरक्की याफ्ता मुल्कों की जमहूरियत एक मेले की तरह है जिसमें पसमानदा मुल्कों के बच्चे गुम हो जाते हैं। नज्म, साख्त का सवाल। दो टांगें एक धड़, दो बाजू एक सर। मुझे अपने आप में इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे यकीन है इससे ज्यादा किसी के पास कुछ नहीं। नज्म, दिन को भूलना है। दिन जैसा गुजारा है उससे निकलने की रात को कोशिश करो। दिन भर कैसे कैसे काम किए हैं जिनको करने का सोचा नहीं जा सकता, लेकिन दिन इन्हीं कामों में गुजर गया। रात को इससे निकलने की कोशिश करना है। किसी आदर्श की उंगली पकड़ना है, मकसद की पगडंडी पर डोलना है। दिन को भूलना है, अगले दिन में फिर जाना है। नज्म, पनाह गाहें। ये खौफ नहीं सच लगता है। कमरे में पड़े सॉफ्ट टॉयज आधी रात को किसी की रूहें ले आते हैं। रूहें धड़ वाली चीजों में आती हैं और आकर छुप जाती हैं। भालू का पेट हिलता है, बिल्ली के कान बंद होते हैं, खरगोश की आंखें चमचम करती हैं। इन बातों से खौफ कैसा। रूहें बेचारी पनाह गाहों की मुतलाशी। सॉफ्ट टॉयज को कोई काम नहीं। बच्चे दिन को ये खिलौने उठाएंगे, रूहें बेचारी सो जाएंगी। नज्म, बात को बनने दो। बात बन रही है, इसकी कागज पर कढ़ाई कर लो, क्या पता ये नज्म बन जाए। इसको गोटे सलमा सितारे लगा दो। गोटे सलमा सितारे नहीं लगते तो छोड़ दो, क्या पता ये नया फैशन बन जाए। नया फैशन नहीं बनता तो पुराने फैशन को भी रहने दो, क्या पता बात फिर भी बन जाए। बात कुछ और बन रही है, बात को बनने दो। नज्म, हैलोईन के भूत। हैलोईन के भूत तेज हवाओं के झक्कड़ों में, तूफानी बारिशों की आड़ में दरख्तों की शाखें गंजी करने आते हैं और बच्चे भूतों की खुशी में शरीक मीठे चॉकलेट इकट्ठे करते हैं। हैलोईन की एक शाम गुजरने के बावजूद भूत सनसनाती हवाओं के रथ पर सवार क्रिसमस तक दंदनाते फिरते हैं। फिर क्रिसमस का बाबा उन भूतों को भगाता है और क्रिसमस के बाबे को नया साल थपथपी देकर सुलाता है। नए साल को सर्दियों की बर्फ रुलाती है। सर्दियों की बर्फ को फूलों के मौसम दफनाते हैं। गर्मा की धूप के इंतजार में फिर हैलोईन के भूत बैठे मिलते हैं और जिंदगी का ये कैलेंडर बिल आखिर भूतों पर आकर मुकम्मल होता है। नज्म, एक नज्म गिलहरी के लिए। जाली सा लगता है एक सजा सजाया घर भी, और उसके चेहरे के पीछे पीछे 6 चेहरों के नीचे का धड़ भी, उसकी हंसी में दबी बत्तीसी भी, और मेरे किचकिचाते दांतों की बेबसी भी। फिर असल क्या है? एक बेतरतीब सा कमरा, मैला कुचैला चेहरा जिसके बालों से सरसों के तेल की महक आती हो, जैसे किसी ने $1 के 5 समोसे खाए हों। और फिर क्या जिंदगी में कोई शय बामानी भी महसूस हो सकती है? हाँ, एक फटा हुआ कागज और उस पर लिखी हुई एक नज्म जो किसी और की समझ में ना आए, मगर उसको एक गिलहरी गुनगुना कर गाए।